اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم، دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ طویل جنگ کے بعد جنگ بندی، غزہ میں امریکی دباؤ پر اسرائیل نے لبنان اور غزہ کی پٹی پر جنگ بندی کی حامی بھر لی۔ امریکی انتخابات سے قبل لبنان میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی انتخابات سے قبل 60 روزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل جنگ بندی کے لیے ہفتے کے اندر لبنان سے اپنی فوج نکال لے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا، اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تقریباً ہو چکا ہے، جس کا اعلان جلد اسرائیلی دورے پر امریکی ایلچی کر سکتے ہیں۔ امریکی ایلچی اس وقت اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ فوری طور پر لبنان میں جنگ بندی کی جائے، اور معاہدہ تقریباً نزدیک لگ چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ امریکی الیکشن سے قبل 5 نومبر کو غزہ اور لبنان کی پٹی پر اسرائیل جنگ بندی کا اعلان کر دے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کی تجاویز پر بائیڈن انتظامیہ تیار ہے، اور بائیڈن انتظامیہ زور دے رہی ہے اسرائیل پر کہ فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا جائے۔ اگر یہ اعلان نہ کیا تو ہم مزید آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ باتیں کی ہیں بائیڈن انتظامیہ نے، کیونکہ اس وقت امریکہ میں انتخابات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کا ووٹ لینے کے لیے امریکی صدر کیملا ہیرس، جو بائیڈن کی پارٹی کی امیدوار ہیں، وہ زور دے رہی ہیں جو بائیڈن پر کہ فوری طور پر اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے ہمدردی کا ووٹ حاصل کر سکیں۔ کیملا ہیرس یہ بھی جو بائیڈن انتظامیہ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے الیکشن ہار بھی سکتی ہوں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی جماعتیں یا بڑے گروہ جو کہ امریکہ میں انتخابات میں اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ سب لوگ اسرائیل کی فلسطین وار پر مخالفت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیملا ہیرس کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ کیملا ہیرس نے جو بائیڈن پر پریشر ڈالا کہ وہ غزہ میں جائے اور غزہ کے اسرائیل میں جا کر غزہ جنگ بندی کا اعلان کرے۔ اسی طرح اسرائیل نے جو کہ لبنان پر چڑھائی کر رکھی ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ضروری ہو گیا۔ امریکی انتخابات میں بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے کیملا ہیرس جو بائیڈن انتظامیہ پر بار بار دباؤ ڈال رہی ہے۔ کیملا ہیرس کا کہنا ہے کہ مسلمان مجھے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ ابھی تک اقدامات نہیں کر سکے، جس پر امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے امریکی ایلچی کو فوری طور پر اسرائیل اور لبنان بھیج دیا گیا۔ ان کے درمیان ایک معاہدہ کرا رہے ہیں 60 روزہ جنگ بندی کا، جو کہ مسلمانوں کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر جو بائیڈن گروپ کی کیملا ہیرس صدر منتخب ہو جائے، تاکہ وہ اسی طرح اسرائیل، فلسطین اور غزہ لبنان پر اپنی بمباری جاری کر سکے۔ اس 60 روزہ جنگ بندی کو فوری طور پر نافذ العمل کرنے سے کوشش جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 5 نومبر سے قبل اعلان کر دیا جائے۔ مذمتی بیانات فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اس وقت میدان میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آئے ہیں، اور انہوں نے جو فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بمباری ہوئی ہے اس پر امریکہ، روس اور دیگر ممالک کی صرف مذمتی بیانات پر
नाराजगी का इजहार किया। फलस्तीनी इलाकों में इसराइली जहारियत पर फैसल बिन फरहान का कहना था कि ये काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ मजम्मती बयान जारी करें, आप हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों ने अभी तक कोई कोशिश नहीं की कि फ़लस्तीन में तबाही हो चुकी है। फ़लस्तीनी लोग को खाने का बुरहान है, फ़लस्तीनी लोगों पर खाने का बुरहान है और बहरान के सामना है। फ़लस्तीनी लोग अद्वियात से महरूम हैं, फ़लस्तीनी लोग रोज़गार से महरूम हैं, फ़लस्तीनी लोग उजड़ चुके हैं। लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक और दूसरे ममालिक अमेरिका, चाइना, रूस सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। मजम्मत से इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक और बहुत बड़ी रियाज में अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरवा के कमिश्नर फिलिप लाज़ारिनी से मुलाकात की और अनरवा पर जो पाबंदी आयद की इसराइल ने कानून पास किया उसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि ये कानून, इसराइली कानून, लोगों को खाने से भी रोकने का और भूखे मारने का ऐलान है। इस बयान पर सऊदी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी अनरवा का साथ देने का ऐलान किया है। जंगबंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम से सऊदी अरब गुरेज नहीं करेगा। हर सूरत जंगबंदी होनी चाहिए। सऊदी अरब फौरी तौर पर मैदान में आया और एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इसराइली फोर्सेस का गजा और लबनान की साहली पट्टियों से इनखला होना चाहिए। इसराइली फोर्स सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के मुताबिक इसराइल की फौज गजा में और लबनान की साहली पट्टी पर तशद्दुद और वहशियाना नस्ल कशी कर रही है, जिसकी सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने मज़म्मत की है। फैसल बिन फरहान का कहना था खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। इसराइल के साथ हमारी यही मामलात तय हुए थे कि हम इस शर्त पे इसराइल को कबूल करेंगे कि इसराइल तल्लुकात फ़लस्तीन को रियासत का, खुद मुख्तार रियासत का क़याम ज़रूरी करेगा, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फैसल बिन फरहान ने एक और ऐलान किया। उनका कहना था कि अरब इस्लामी सरबराही इजलास फौरी बुलाया जाएगा, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक के तमाम सरबराहान शिरकत करेंगे और वो एक लाहा अमल देंगे। मजीद मजम्मत करते हुए कहा, अनरवा की सरगर्मियां ख़त्म करना इसराइली साजिश है। इसराइली साजिश के तहत लोगों को भूखा मारा जाएगा। इसराइली इक़दामात और मग़रबी किनारे की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इसराइल इस वक्त जो मगरब पर बमबारी कर रहा है, गजा की मगरबी पट्टी पर जो बमबारी कर रहा है, उससे लोग इंतहाई संगीन बीमार और जख्मों से चूर हैं। इसराइल के ऐसे इक़दामात से फ़लस्तीनी जो महशियत है वो तबाही के दहाने पर खड़ी है। इसराइली नाफिज करदा सख्त कवानीन से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। फिलिप का कहना था, गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में जारी इसराइली जारियत दो रियासती हल को नामुमकिन बना रही है। अनरवा एजेंसी के सरबराह फिलिप ने कहा कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप जंग भी जारी रखें और ये भी कोशिश करें कि पुरअमन हो। फिलिप का कहना था कि आप फ़लस्तीन से उनकी रियासत छीन रहे हैं और ये कभी भी जारियत से रियासत नहीं छीनी जा सकती। इसराइली जारियत दो रियासतों को नामुमकिन बना रही है। गजा की पट्टी सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ तबाह इसराइल कर रहा है। इसराइल को अपने इक़दामात पर शर्म व हया आनी चाहिए। इसराइली इनखलाब पर बातचीत के लिए तैयार हैं सामी अबू ज़हरी, हमास के रहनुमा का बड़ा ऐलान। हमास के रहनुमा सामी अबू ज़हरी ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीनी इलाके को
फौरी तौर पे फौज का इनखला किया जाए और फौरी तौर पर मामलात के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गजा में जंगबंदी के लिए साल्सों की नई तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल कर रहे हैं, लेकिन सामी अबू ज़हरी का कहना था इस बात का इआदा किया है किसी भी मुजाहिद किसी भी मुहासरे में फ़लस्तीनियों के इस मुहासरे से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला शामिल करना ज़रूरी है। सामी अबू ज़हरी ने कहा कि मुस्तकिल जंगबंदी होना बहुत ज़रूरी है, कब्ज़े का इनखला होना बहुत ज़रूरी है। ये जो तमाम इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ से इसराइली फ़ौज का इनखला बहुत ज़रूरी है। इसराइल ने फ़लस्तीन के साली इलाकों में नाकाबंदी जगह जगह कायम की हुई है। सामी अबू ज़हरी के मुताबिक ये नाकाबंदी भी इसराइल को फौरी तौर पर ख़त्म करनी होगी और ये तमाम इक़दामात सामी अबू ज़हरी के मुताबिक ये गैर महदूद नहीं हों, ये गैर मशरूत किसी चीज़ से मशरूत नहीं होंगे। फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी ज़मीन वापस की जाए और हमें गैर महदूद इमदाद मिलने वाली इमदाद को इसराइल को रुकावट नहीं बनना चाहिए। फ़लस्तीन में तामीर नौ की हमें इजाज़त देनी चाहिए, जो कि फ़लस्तीन ने बहुत बड़े इलाके को तबाह व बर्बाद कर दिया, और कैदियों का तबादला होना चाहिए। ये तमाम बातें सामी अबू ज़हरी ने एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि जंगबंदी तवील जंगबंदी के लिए एक अरसे तक जो जंग बंद रहे उसके लिए ज़रूरी है कि इन तमाम इक़दामात पर अमल किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम हमास के रहनुमा सामी